આ સમયે આપણી મધ્ય પ્રભુના દાસ પ્રેમભાઈ રાજસ્થાનથી આવ્યા છે. એમને આમંત્રિત કરેલા હતા. ગઈકાલે અહીંયા ફેઇથ ફેલોશિપ મિનિસ્ટ્રીની સેવકોની મિટિંગ થઈ. તમે જેટલા બી અહીંયા હાજર થયા હશો તમને ખબર છે કઈ રીતની મિટિંગ થઈ. બાકી આ કમિટીની અંદર આપણી મંડળીમાં જે પ્રભુના દાસ આજે નથી, એની પાછળ જે બી કામ કરવાનું હતું એના માટે પ્રભુના દાસે આસિસ્ટન્ટ પાસ્ટરો આપણી મધ્યે નિમણૂક કરી ગયેલા હતા. સુમનભાઈ, કનૈયાભાઈને ને આ ફેલોશિપ તરફથી અને આપણી મંડળી તરફથી મંડળીના સભ્યો, કમિટી મેમ્બરો એ લોકોને અહીંયા મંડળીમાં પાસ્ટર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ફેલોશિપ તરફથી બી ગઈકાલે એમને નિમ્યા સ્વાગત પણ કર્યું. ફરીથી આજે આપણે મંડળી તરફથી એમનું સ્વાગત કરીશું. સાથે પ્રભુના દાસ પ્રેમ મસીહ છે. તમે ઘણા ખરા અમને ઓળખતા જ હશો. ઘણા વર્ષો પહેલા અહીંયા આવીને આ સોનગઢ વિસ્તારની અંદર કહો, મહારાષ્ટ્ર વ્યારાની અંદર કહો, કોઈ રોડ એમની નજરમાં બાકી ન હશે. હું એવું કહું તો કોઈ ખોટું નથી. હાલેલુયા. એટલી એમની સેવા છે, સેવા કરી ગયા છે. રાજસ્થાનથી આવીને એમણે અહીંયા સેવા કરી. સાથે સેવાની સાથે સેવા કરે તો શું મળે? બોલો, મેવા મળે ને. તો એમને આપણા સોનગઢ તાલુકામાંથી, મેળા ગામમાંથી એમને ધર્મપત્ની પણ મેવાની અંદર મળી ગઈ ને આપણા સોનગઢના આમ મંડળીના એક પરિવાર તરીકે આપણે કહીએ તો બી વાંધો નથી. તો આ સમયે હું વિનંતી કરીશ, પ્રભુના દાસ પ્રેમ મસીહ આગળ આવશે, તેમનું આપણે ગુગે આપીને સ્વાગત કરીશું. અને વિનંતી કરીશ સતીશભાઈ રંજુ તેઓ આગળ આવશે, એમનું તેઓ સ્વાગત કરશે. એના પછી તાળીઓ આપીશું આપણે. એના પછી અનોસભાઈ અને અલ્પા આગળ આવશે. તાળીઓ તાળીઓ. અનોસભાઈ, અલ્પા આગળ આવશે. સુમનભાઈનું તેઓ સ્વાગત કરશે. આજથી આપણે મંડળીની અંદર સેવકો તરીકે એમને નિમણૂક કરવામાં આવી છે. એમનું સ્વાગત અનસભાઈના અલ્પા કરશે. સારું, આ સમયે કનૈયાભાઈનું આપણે સ્વાગત કરીશું. અને દીક્ષિતભાઈ અને ટીના આગળ આવશો. બુફે આપીને તો તેમનું સ્વાગત કરશે. પહેલી વાર જે મંડળીમાં આવ્યા છે. કોણ? અચ્છા 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 અચ્છા. કઈ લાગ્યા તો નથી. આવ્યા છે ને. સારું, આ સમયે પ્રકાશભાઈ, એમની પત્ની આજે આવ્યા છે આપણી મધ્યે. પહેલી જ વાર આવ્યા છે, તો એમને પણ આપણે આગળ બોલાવીશું. હજુ એમનું લગ્ન જોડાણ બાકી છે, પણ આપણી મંડળીમાં આવ્યા છે. તેમનું આપણે સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. પ્રકાશ આગળ આવશો. કલ્પના આજે જ આ ચર્ચમાં પહેલી વાર જ આવ્યા છે, એટલા માટે મારું જે સન્માન છે હું એમને આપવા માંગુ છું. જોરદાર તાળીઓ આપીએ એમના માટે. સારું, આપણે આપણને આમંત્રિત કરશે ત્યારે આપણે લાપસી ખાવા જઈશું ને. કબૂલ કરો છો ને?
આપણને આમંત્રિત કરશે. સારા સમયે મારી પાસે એક કાપલી આવી છે. ફેથ ચર્ચ કમિટી, જે આપણે મંડળીને અહીંયા કંઈ બી કામ કરવા માટે, મંડળીને ચલાવવા માટે કોઈ એક કમિટી રહી છે, તેનું અહીંયા લિસ્ટ છે. પ્રમુખ સતીશભાઈ ગામિત, ઊભા રહેશો. સેક્રેટરી અનસભાઈ, ખજાનચી નવીનભાઈ અને કમિટી સભ્ય યોહાનભાઈ, પોતપોતાની જગ્યા પર તમે ઊભા રહેશો. દીક્ષિતભાઈ, અનિલભાઈ, મહેશભાઈ નથી આવ્યા છે. અજયભાઈ, આશીષભાઈ, સુધીરભાઈ, વિજયભાઈ છે નથી. આ કમિટી મેમ્બરો છે. હું વિનંતી કરીશ પ્રેમભાઈ, મંડળીના જે આગેવાનો નીમવામાં આવ્યા છે એ લોકો આવીને સેવા કરે, એમના માટે પ્રાર્થના કરશું. હું તમને જરા દુઃખ આપીશ, આગળ આવી જજો જરા. Praise the Lord. Hallelujah. દરેક સાહેબ લોકો આગળ આવો. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God in the name of Jesus. Hallelujah. ધન્યવાદ પ્રભુ. પ્રભુના નામનો આભાર માનીએ. પ્રિયો, પ્રભુની સેવા મહાન છે, મોટી છે, અને સેવામાં ભાગ લેવું એ સૌભાગ્યતા છે. નસીબ છે જેમને સેવા મળે છે. વફાદારી, ઈમાનદારી, સત્યતા, સહાનુભૂતિ અપનાવીને પ્રભુની સેવામાં પડજો. એનું પ્રતિફળ આ ધરતી પર અને સ્વર્ગરાજમાં પ્રભુના હાથમાં છે. તે સેવા કરનારો વફાદાર લોકોને પોતાની પ્રતિષ્ઠા આપે છે અને આપશે. ને ભવિષ્યમાં તમે મહાન બનશો, તમારી મંડળી મહાન બનશે. અને હું ભવિષ્યવાણી કરું છું કે દેવના આગમનમાં દેરી થઈ તો એક હર રાજ્યમાં ફેરેલી છે એટલું જ નહીં, પણ દેશ વિદેશમાં સેવા કરનાર એક મિશનરી કલિસિયા, આ કલિસિયાને દેવ બનાવવા માંગે છે. હાલેલુયા. પ્રભુ તમને વધારે. દરેક જણ પોતાના હાથ, જમણા હાથ એમના તરફ લાંબા કરજો. આપણે બધા મળીને પ્રાર્થના કરીએ. સેવક સાહેબ, તમારો વિડીયો થાય છે, આવી જજો તમે. Praise the Lord. Hallelujah. દરેક જણ પોતાના હાથ લાંબા કરો. આ બોડી અને સેવકો તરફ. હાલેલુયા. દરેક જણ જમણો હાથ લાંબો. અગર તમે હાથ લાવ્યા છો, વિશ્વાસથી લાંબો કરો. તમારા હાથના અંદર તાકાત છે, તમારા હાથના અંદર સામર્થ્ય છે, તમારા હાથના અંદર અભિષેક છે. પાછળના દિવસોમાં તમે પ્રાપ્ત કર્યો છે. હાલેલુયા. તમારા હાથો દ્વારા આ કમ્યુનિટી દેવ પ્રેમ કરી રહ્યો છે, મજબૂત કરી રહ્યો છે. હાલેલુયા. ભવિષ્યના માટે, પ્રભુની સેવાના માટે, રાજનીતિમાં આગળ વધવા માટે, મોટા મોટા લોકો સાથે વાત કરવા માટે, એ દરેક સમસ્યાના સોલ્વ કરવા માટે પવિત્ર આત્મા એમને તૈયાર કરશે. હાલેલુયા. થેન્ક યુ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद हमारे जीवित मेहरबान परमेश्वर के साथ दोनों सेवकों को और इस कलीसिया को हम आपके हाथ में सौंपते हैं. इस बॉडी को, प्रभु कमिटी को प्रभु यीशु के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं. In the name of Jesus. यीशु का लहू उनको छिपा ले, यीशु का लहू उनको सामर्थ दे, यीशु का लहू उनको ज्ञान दे, यीशु का लहू उनको अभिषेक करे, ताकि आने वाले समय में केवल 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 यीशु को महिमा मिले. और ये कलीसिया बढ़ती जाए, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में. प्रभु ये सेवा बढ़े, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं. आशीष
इस कमेटी को विशेष आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्लीज stand up. સારું, મહત્વના ભાગ તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે ત્યારના એક ભાઈ મને બહાર મળ્યા। हिंदी जानने वाले कितने लोग यहाँ हैं? ऊपर हाथ उठाइए। आप कहाँ से आए? हाँ, यूपी से। ठीक, સારું। આમ બી એ લોકો માટે આજે હિન્દીમાં જ પ્રચાર થવાનો છે। પ્રેમભાઈ હિન્દીમાં જ પ્રચાર કરશે। સારો આ સમય પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માને સાથે આપણે પ્રભુના દાસને આપણે વેલકમ કરીએ। તાળીઓ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરીએ। Praise the Lord. राजस्थान की सारी कलिसियाओं की तरफ से, लोगों की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको जय मसीह की। हालेलुया। हम लोग हमेशा आप लोगों को याद करते हैं। गुजरात की सारी सेवकाई को हम याद करते हैं, सेवकों को याद करते हैं, विश्वासियों को याद करते हैं और कई बार गवाही देते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और हम हमेशा विनती करते रहते हैं कि आप लोग भी हमारे राजस्थान की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है और प्रार्थना के बल पर ही हम बढ़ सकते हैं। प्रार्थना के बल पर ही हम बढ़ सकते हैं। और मैं कुछ प्रभु के वचन में जाऊं उससे पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूं। ये कलीसिया खड़ी है, ये भी प्रार्थना के बल पर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में आगे चले गए सरजू मासी और मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा क्योंकि नाम लूंगा तो कोई का रह जाएगा तो उसको बुरा लगेगा। परंतु सरजू मासी हमारी लीडर थी और हम सब से, और मैं यहां तक कहता हूं कि प्रभु का दास प्रभु के पास चला गया राजू भाई, उससे भी बढ़कर प्रार्थना करने वाली प्रभु की दासी थी। हालेलुया। हम सब, मेरे से भी बढ़कर, मैं भी बहुत कम प्रार्थना करने वाला। बाकी सरजू मासी की प्रार्थनाएं और हमारी बहनों की टीम की प्रार्थना ने हम सबको खड़ा किया है। हालेलुया। आप जो यहां है, कोई भी इस बात को बुरा ना माने कि मुझे नहीं गिना, परंतु हम सब यहां बैठे हैं उनकी प्रार्थना की बुनियादी है। हालेलुया, हालेलुया। रातों रात प्रार्थना करते थे, रातों रात रोते थे और उनके आंसू कभी सूखते नहीं थे, केवल इस कलीसिया को। और आज तो आप कितने हैं? बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं। इतनों में बैठकर संदेश देना, गवाही देना, प्रार्थना करना, ये तो बड़ी उत्साह मिलती है। परंतु 2 जन, 4 जन, 1 जन बैठ के रोते थे और प्रभु की सेवा इस गांव में, इस एरिया में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते थे। और उनके बल के अनुसार, कारण, उनकी प्रार्थना की ताकत के कारण आज हम यहाँ हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना के ताकत के कारण अगर प्रभु में आने की में देरी हुई तो बहुत जगह कार्य होगा। हालेलुया। आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि हम सबको आगे पीछे जाते रहना है। कुछ बातें मैं नहीं बोलूं ऐसा बैठ के सोच रहा था, परंतु मेरे दिमाग में आया, प्रभु का दास राजू भाई यहां से, हमारे पास से प्रभु के पास चला गया। अब वो कैसे यहां आया और कैसे उन्होंने सेवकाई किया और कितना दुख सहन किया, कितना कष्ट सहा, कैसे गांव में फैले, हम अब उनसे नहीं पूछ सकते। वो चले गए। अगर वो जीते जी हमको बोलते तो हम उनकी बातों को, स्टोरी को जान सकते। इसलिए हमें शुरुआत सेवकाई इन बातों को भी जानना चाहिए। हालेलुया। मैं बीच में बैठ के वही सोच रहा था कि मैं गवाही ना बोलकर प्रभु का वचन बताऊं, परंतु जानना जरूरी है किस प्रकार हम लोग शुरू हुआ, किस प्रकार आगे बढ़े, तो आपको भी उत्साह मिलता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस स्थान के लिए, इस कलीसिया के लिए, इन जवानों के लिए, वडीलों के लिए, सेवकों के लिए और आप सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। प्रभु के वचन में लिखा है,
जो रोता हुआ बोता है वो हंसता हुआ काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन सत्य है और वो सत्य साबित करके बताता है। 1980-81 में हम लोग सोनगढ़ में आए। 80-81 में मैं आया, 80 में हमारी टीम आई और उस समय इस एरिया में घूम घूम के प्रभु की सेवकाई को किया। शुरुआत में हम रानी अंबा में रुके और रानी अंबा में सेवकाई किया और रानी अंबा से फिर सोनगढ़ में आए और सोनगढ़ की शुरुआत, हमारे पास कोई जगह भी आराधना करने का स्थान नहीं था। वो बगीचा क्या बोलते हैं, रंगूपन ने, रंगूपन, उस बगीचे के अंदर हम लोग आराधना करते थे। पीछे एक छोटा सा बरामदा जैसा था, उस बरामदे के अंदर हमने आराधना की शुरुआत की और वहां आराधना करते करते वहां एक काका बाग में काम करते थे, सुरेश के पिताजी। उन्होंने बोला मेरे घर आराधना करेंगे। हम लोगों ने वहां आराधना किया। वहां आराधना कुछ समय तक चली और चलने के बाद ये पैसा कभी कभी आगे बढ़ाता है और पैसा कभी कभी बिखेर देता है, गिरा देता है। तो वहां दान का कुछ प्रॉब्लम हुआ और दान का प्रॉब्लम होने के कारण से वहां थोड़ा विवाद हो गया और विवाद होने के बाद एक प्रभु के दास को कुछ व्यक्ति ने मारा। आराधना तुम चलाओ, मीटिंग तुम करो, बाकी दान हमको चाहिए। तो इस प्रकार थोड़ा विवाद हो गया। विवाद होने के बाद प्रभु के दास को मारा। फिर हम लोग वहां से आराधना खत्म करके वापिस आए। वापिस आने के बाद जोलू भाई के वहाँ, फिर सरजू मासी के वहाँ छोटा सा कमरा था। सरजू मासी का 12 बाई 12 का नहीं, 12 बाई 12 का लगभग था। 12 बाई 12 का रूम रहता था। उस रूम के अंदर हम लोग आराधना करते। इस प्रकार प्रभु की सेवकाई को किया और प्रार्थना किया, क्योंकि कई बार लोग ज्यादा आ जाते थे तो प्रियो बैठने की जगह नहीं रहती थी। तो हम लोगों ने प्रार्थना करते थे, प्रभु हमको कोई जगह देना, प्रभु हमको जगह देना। और प्रभु ने पंचायत के द्वारा हमको जमीन मिली, परंतु दूर मिली थी। तो उस समय सोनगढ़ इतना फैलेगा ऐसा सोच हमारा नहीं था, या क्या कारण था, हम लोग वहां नहीं गए कब्जा करने के लिए और वो जमीन हाथ से चली गई। और चली जाने के बाद फिर इस प्लॉट को हमने खरीदने का निश्चय किया और हमारे पास कोई पैसा नहीं था। कोई पैसा नहीं था, हमें कोई पैसा देने वाला भी नहीं था। तो थॉमस मैथ्यूस साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, भाई साहब हमको थोड़ा सा दो। तो उन्होंने कुछ पैसा 22,000 के ऐसा कुछ मेरे को दिया और इसकी उस समय 67,000 रुपये ऐसी 2 प्लॉट 15 बाई 15, 15 बाई 15, 30 बाई 30 का 67,000 के ऐसा कुछ कीमत था। तो हम लोगों ने, उस समय किसी के पास पैसा नहीं था और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उस समय सीपीएम बंद हो गया। इसलिए सुधीर भाई, नवीन भाई, जोलू भाई आत्मिक जीवन में बहुत बड़े, क्योंकि नौकरी जाने का टाइम नहीं था। हम लोग सब घूमते थे और घूमकर प्रभु की सेवा करते थे और ऐसी परिस्थिति में ये लोग आत्मिक जीवन में बहुत अच्छे परिपक्व हो गए। आर्थिक रीति में तो हम तंग थे, आर्थिक रीति में कुछ भी नहीं था, परंतु आत्मिक जीवन में इतने रातों रात हम लोग साइकिल लेकर इन गांवों के अंदर सेवकाई करते थे और घूमते थे और प्रभु ने उनको मजबूत करने के लिए सीपीएम को बंद किया। ऐसा मैं सोचता हूं कभी कभी। मजबूत, कोई भी कष्ट आता है तो हम सोचते ऐसा क्यों होता है, परंतु कष्ट कभी कभी हमारी भलाई के लिए आता है, हमारे फायदे के लिए आता है। और प्रभु के दास अच्छे मजबूत हुए और हम लोगों ने इस जमीन को खरीदा और खरीद कर नाम पर करवाया, परंतु मैंने कहा आपके पास पैसा नहीं था। प्रियो, प्रभु की सेवा में हमेशा देने से घाटा नहीं होता है, देने से फायदा होता है। हालेलुया। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, मैं इस बात में मेरी बड़ाई को नहीं चाहता हूं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं
कि कभी भी अपनी मुट्ठी को बांध कर मत रखना। मुट्ठी को खोलोगे आपको बहुत मिलेगा। और महिला मीटिंग उस समय इस एरिया में कहीं महिला मीटिंग ही नहीं होती थी, परंतु हम लोगों ने बहनों की मीटिंग शुरू किया पीपल कुआ से। और हमारे यहाँ नवीन भाई के घर के अंदर बहनों की मीटिंग की शुरुआत की, और उसमें महीने में एक प्रचार मैं करता था, बाकी बहनें चलाती थी। इस प्रकार इस जगह को शुरू किया और एक बुक छपवाया हमने, और उस बुक के द्वारा सारे लोगों ने अच्छा हमको दान दिया, और दान देने के बाद इस जमीन की कीमत चुकाई और इसको हमने खरीदा। हालेलुया। और उस समय मैं सोनगढ़ का पास्टर, दुमदा का पास्टर और किकाकुई का पास्टर, 3 जगह का एक ही पास्टर था। 3 जगह की कलीसियाओं को मैं ही चलाता था, और मेरी लीडरशिप में ये प्रभु के लोग मानते थे, और मैं 3 जगहों को संभालता था। और इसका जो फाउंडेशन, इसका काम हम 3 कलीसिया वाले मिलकर इसको बनाया था। कच्चा बनाया था ना सुधीर भाई, सीमेंट से नहीं बनाया ऐसा लगता मेरे को, अपनी मिट्टी और पत्थर से बनाया था। मैंने खुद चुनाई किया था और बना। इस प्रकार मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कोई गर्व की बात नहीं है, यह सब समय की बात है, परंतु इस प्रकार इस कलीसिया को प्रभु ने यहाँ तक लाया। और बीच में प्रभु के दास हमारे बीच में आए, और उस समय मैंने राजस्थान में जाने के लिए सोचा, कहा मैंने सुधीर भाई, नवीन भाई, जुलू भाई, उनको कहा मैं राजस्थान जाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि मेरे बच्चे हिंदी में पढ़े और राजस्थान में पढ़े, क्योंकि मैं हमारे परिवार में छोटा हूं, और हमारे उधर हमारे वहाँ का नियम है कि माँ बाप की सेवा छोटे को करना होता है। तो मेरी फर्ज वहाँ थी कि मैं माँ बाप की सेवा करूँ, इसलिए मैं वहीं रह के सेवा करना चाहता था। तो मैं यहाँ से गया, इन लोगों ने मेरे को मना, बोला नहीं जाना भाई साहब, आपको हम नहीं जाने देंगे। मैंने बोला नहीं, मैं जाऊंगा और मेरे जाने से आपका अच्छा होगा। तो प्रभु के दास यहाँ आए, और आने के बाद इन्होंने इस कलीसिया को संभाला और बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिया, बहुत अच्छी बढ़ोतरी दी। और अपने कहना चाहिए सोनगढ़ को ही नहीं, परंतु कई स्टेट को प्रभु के दास ने प्रभु की सेवकाई में बढ़ाया। और मैं भी कहता हूँ हमारे राजस्थान के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हालेलुया। आज वो नहीं है, मैं सोनगढ़ में उतरते ही मुझे लगता कि मैं खाली हूँ, कुछ नहीं होता था, मैं उनसे कॉल कर लेता था, कहाँ हो राजू भाई, आपकी तबीयत कैसी है, मेरे जीवन में हो जाता था, एक है यहाँ है। परंतु प्रभु के दास जब प्रभु के पास चले गए, परंतु उन्होंने टूंक समय के अंदर बहुत बड़ी सेवा की, और वो बाकी सेवा वो आपके लिए, मेरे लिए और यहाँ सेवा करने वाले सेवकों के लिए छोड़ कर गए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत इस प्रकार प्रभु ने इस सेवकाई को बढ़ाया। मुझे याद है एक जुलू भाई के वहाँ हम मीटिंग कन्वेंशन कर रहे थे, उस समय कन्वेंशन की जगह नहीं थी, कन्वेंशन करने गए, और सुधीर भाई शायद भूल गए होंगे, बाकी मुझे याद है परमिशन के लिए उस समय नरू सिंधे साहब यहाँ के नगरपति थे, और हम लोग परमिशन लेने के लिए गए मीटिंग के लिए। मैं इसलिए कहता हूं कि प्रियो, जो रोता हुआ बोता है वो हंसता हुआ काटेगा। हालेलुया। कष्टों के साथ इन लोगों ने इस कलीसिया को खड़ा किया, खड़े रहे। हम मच्छी बाजार के अंदर वो होटल में खाना खा रहे थे सिंधे साहब, और हम गए परमिशन के लिए पूछने के लिए। तो सिंधे साहब के शब्द जो थे वो आज भी मुझे याद है, चूरी है ने, उस चूरी से तेरा पेट फाड़ डालूंगा, भाग जाए यहां से। क्योंकि सुधीर भाई का उनका अच्छा बनता था, सीपीएम में वो नौकरी करते, इसलिए हम उनको आगे लेके गए। उन्होंने बोला मैं नगर का पति हूं, नहीं दूंगा परमिशन, देखना नहीं मांगता, निकल जाओ। और हम लोग पीछे वहां से चले आए। दिल रोता था, दिल में रोते हुए आए, और आने के बाद हमने डर डर से मीटिंग को चलाया। इस प्रकार कई प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा इस कलीसिया को, और ये हम सामान्य नहीं हैं, परंतु ये आपके लिए सामान्य हैं जिन्होंने इस कलीसिया को इस जगह पर
रखा, आज हम यहाँ आकर उद्धार को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के कार्य को हम पा सकते हैं और स्वर्गीय मार्ग को हम यहाँ से अपना सकते हैं, अगर इन लोगों को प्रभु ने खड़ा किया इसलिए। नहीं तो सोनगढ़ में आराधना करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था मेरे प्यारों। देवजीपुरा में कई लोगों ने किया था, गांव में कई लोगों ने किया था, परंतु सबको आखिरकार चर्च बना नहीं पाए वो लोग, और मंडली का रूप नहीं दे पाए। परंतु इन 4 खंभों के द्वारा, आप लोगों को लगता होगा हमेशा ये उनका नाम लेते हैं, यो, परंतु आप सब उनके अंग हैं, आप अलग नहीं हैं, आप आगे पीछे आए, आप अलग नहीं हैं, आप उनसे जुड़े हुए एक अंग है। परंतु इन 4 खंभों ने इस कलीसिया का बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्यारो, 2-2 दिन तक भूखे भी रहे, 2-2 दिन तक भूखे रहे, और मिला तो बांट कर खाया है, परंतु कलीसिया के लिए वो रोए हैं और रो कर कलीसिया को स्थापित खड़ा किया है। इसलिए इन 4 परिवारों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद आप जुड़े, आप सबका मैं तह दिल से सम्मान करता हूं, और उनके साथ ही आपको गिनकर आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में बढ़ते जाइए। ये अपना काम नहीं है, प्रेम भाई का काम नहीं है, राजू भाई का काम नहीं है, और कन्हैया का काम नहीं है, सुमन भाई का काम नहीं है, सुधीर का काम नहीं है, नवीन का काम नहीं है, ये राजाओं के राजा का काम है। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा का काम है, हम तो उसके खेत में मेहनत करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये चर्च की जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम, परंतु कभी भी हमने उसके बीच में किसके नाम, ना तो कभी राजू भाई ने बोला मेरे नाम करवा दो, कभी सोनगढ़ वालों ने कहा मेरे नाम करवा दो, कभी मैंने कहा मेरे नाम है तो मैं बादशाह हूं। ये प्रभु का काम है, और प्रभु ने हमें रखा है, हमें प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। हम प्रभु के लिए करेंगे तो हम बढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, और सारा कार्य हम उसके लिए करते हैं, हम और किसी के लिए नहीं। हालेलुया। वो हमें प्रतिफल देगा, यहाँ का है यहाँ रहेगा। अगर प्रभु के आने में देरी हुई तो हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, खाली आए हैं खाली चले जाएंगे। हालेलुया। परंतु अगर वफादारी के साथ हम सेवकाई करेंगे तो बड़ा प्रतिफल प्रभु के पास हमारे लिए है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। इस कलीसिया को आपका शरीर मानना है, और हर रविवार को जब कभी यहां आराधना होती है तो एक जन आपके पड़ोस में अगर कोई विश्वासी है तो आपको एक जन को कहना है, क्या आज हमारे चर्च में आप आओगे? हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास्टर बहुत प्रेमी हैं और बहुत अच्छा प्रभु का वचन अवलोकन करते हैं, बांटते हैं। क्या आज आप हमारे चर्च में आओगे? हर एक विश्वासी का प्रयत्न रहेगा कि एक विश्वासी को मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक का, सेवक का नहीं, विश्वासी की जवाबदारी है कि एक ना एक जन को मैं 6 दिन के अंदर बताऊंगा कि इस रविवार को आप एक बार हमारे चर्च में आना। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार प्रभु के कार्य को हम बढ़ाएंगे, और अगर ऐसा करोगे तो उसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। हालेलुया। मैं सोनगढ़ से गया, उसके बाद राजस्थान में बहुत कठिन परिस्थिति लगी। कम से कम 5 साल तक मेरे पास कोई कलीसिया नहीं। मैं आगे पीछे होता रहा। मैं कभी कभी मुझे आवाज आती, तेरी सेवा गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है, क्यों आगे बढ़ा है, समय क्यों खराब कर रहा है। मैं रोता हुआ प्रार्थना करके प्रभु से कहा, प्रभु गुजरात का परमेश्वर तो राजस्थान का भी हो सकता है। हालेलुया। गुजरात की बेदारी राजस्थान को भी दे सकता है, और दे हमको इस बैकवर्ड, जंगली और ऐसे विस्तार के अंदर, अनपढ़ और हर प्रकार से पिछड़े वर्ग के अंदर तूने हमें जन्म दिया, तो बेदारी भी दे। हालेलुया। और प्रिय 5 साल के बाद 1 2 करके मेरी हमेशा सेवकाई है, कलीसिया को खड़ी करो
और वहां सेवक को खड़े करो, आगे जाओ। अभी 18 कलीसियाएं मेरे पास है, हालेलुया। कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ हमारे 2 सेवकों को उकई चर्च वाले सपोर्ट करते हैं, 4 सेवकों को दुमदा वाले सपोर्ट करते हैं, और 3 सेवकों को ये बेड़वान राजू भाई, वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई मिस्त्री नहीं है, परंतु 18 सेवक, अभी 18 सेवक है, 18 कलीसियाएं हैं, और प्रभु ने गुजरात में जैसे काम किया वैसे राजस्थान में भी आज किया है, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, रोता हुआ बोता है, वो हंसता हुआ काटता है, और आप भी प्रभु के लिए बोओगे तो आप हंसते हुए काटोगे, हालेलुया। प्रभु की महिमा देखोगे। प्रभु के लोगों ने कष्टों के साथ इस स्थान को चुना, और हम लोगों ने यहाँ, वो मिट्टी थी, सुअर इधर इधर रहते थे, यहाँ उस 30 फीट 30 बाई 60 की जमीन, यहाँ लाइट की डीपी लगी हुई थी। यहाँ आके हम लोग रो रो के प्रार्थना करते थे, प्रभु कलीसिया बनाना, चर्च बनाना, और यहाँ एक बड़ा काम करना। हम बड़े काम को देखना मांगते हैं, और प्रभु ने उस प्रार्थना को सुनकर किया और करता जा रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। हमारे पास समय जा रहा है, अब हम प्रभु के वचन को देखें और प्रभु के वचन को मनन करें। मैंने कल इसी जगह पर, मुझे 15 मिनट का समय मिला था, और 15 मिनट के समय के अंदर मैंने कहा था कि ये बाइबल हमारे लिए सब कुछ है। अगर आपको गरीबी में से निकलना है तो बाइबल आपके घर में रखो, आपके पास में रखो, और बाइबल को पढ़ो। अगर आपके पास खेत नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, तो आप बाइबल को पढ़ो, बाइबल के वचनों को मुंहपाठ करो, याद करो। मैं 1977 से इस बाइबल को लेके घूमता हूं। मैं 1977 से, 1977 में मैं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मालवा एरिया राजस्थान में था, और वहां से उदयपुर आया, और उदयपुर आने के बाद 1980-81 में सोनगढ़ में आया। तब से आज तक मैं इस बाइबल को लेकर घूमता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे कभी भी आज मेरे पास ये चीज नहीं है ऐसा कह के रोना नहीं पड़ा, हालेलुया। प्रभु ने धनी नहीं बनाया, प्रभु ने गरीब भी नहीं बनाया, प्रभु ने मुझे बीचों बीच में रखा कि मैं गवाही दे सकूं कि मेरे पास सब कुछ है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास सब कुछ है, ऐसी गवाही मैं दे सकूं। कुछ भी नहीं था, परंतु सब कुछ है, और ये इस बाइबल के कारण है, हालेलुया। जवानों, हर एक विश्वासियों, अगर आप प्रभु के संदेश पर विश्वास करते हो और संदेश को सुनते हो, तो मैं आपको खातिरी पूर्वक कहता हूं, सत्य है प्रभु का वचन, और वचन आपके पास रहेगा। आप धनी हैं, आप अमीर हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, आप ऊंचे पद वाले हैं, आप जहां भी जाओगे निष्फल नहीं होगे, आप विजय होकर लौटोगे, हालेलुया। कोई भी काम के अंदर अच्छा काम करने के लिए आप कदम धरोगे, अगर आपने बाइबल को महत्व दिया है तो आप ऊंचाइयों पर जाओगे, हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च में 2 जवान हैं जिनके बाप मां मर गई, और बाप ने दूसरी बहन से शादी की, और वो बहन का व्यवहार इन बच्चों के प्रति अच्छा नहीं था। कभी वो बच्चे खेतों में सो रहते थे, कभी जंगलों में सो रहते थे, कभी किसी के घर रोटी मांगते थे, कपड़े पहनने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। दोनों जवान, दोनों लड़के रोते हुए जिंदगी काटी, परंतु उनके पड़ोस में एक चर्च चलता था। उस चर्च में
वो लोग आते थे और दोनों जवान दो नया नियम लेकर गए, नया नियम लेके गए और वो नया नियम को पढ़ते थे और चर्च जाते थे और सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ते गए। पर दोनों ने नीचे किया, पहले बाइबल पढ़ना फिर स्कूल जाना। वो गवाही देते हैं, हमने तो उनकी बातों को नहीं देखा, नहीं सुना, परंतु उन्होंने गवाही दिया, हम बाइबल पढ़ते थे और फिर स्कूल जाते थे। आज दोनों बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बनकर, जो उनको रोटी नहीं देते थे, सोने नहीं देते, खाने नहीं देते, वो लज्जित होते हैं और वो आज बड़े बड़े अच्छी अच्छी गाड़ियों में दोनों के दोनों जवान घूमते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन को महत्व देने का प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए इस किताब को छोटी किताब मत समझो, इस किताब को चंगाई की किताब मत समझो, इस किताब को खाली चर्च लेकर जाने वाली किताब मत समझो, इस किताब को ईसाइयों की पुस्तक मत समझो, इस किताब को आपके भविष्य की द्वार समझो। हालेलुया, हालेलुया। ये किताब आपको ऊंची उठाएगी, ये किताब आपको सम्मान दिलाएगी, ये किताब आपको सब कुछ देगी और मुझे दिया है, मैं इसका गवाह हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कल कहा था, बाइबल को ऊंची करके हम उसको सम्मान देकर प्रार्थना करें। हालेलुया। और हमने प्रार्थना किया था, कुछ लोगों ने उसको याद किया होगा। आज के थोड़ा सा वचन मैं आप लोगों को बीच में देना चाहता हूं। हमेशा मेरा संदेश, जानते हैं सोनगढ़ वाले, बड़ा नहीं होता है, मैं छोटा संदेश देता हूं। तो पढ़ेंगे अपन यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसका 14 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। जिस रीति से मूसा ने पीतल के सांप को बनाकर जब मरी चली और इस्राएली मर रहे थे, तब परमेश्वर ने उससे कहा, सांप को बनाकर ऊंचे, पीतल का सांप बनाकर ऊंचा कर, जो उसकी ओर देखेगा वो जिएगा। और जिन्होंने देखा मरी रुक गई। वैसे ही यहां लिखा है, एक बार और पढ़ो। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आंखों को बंद करके प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया। दया के धनी जीवित परमेश्वर पिता, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मैं साधारण व्यक्ति हूं और प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो आवाज निकलती है वो मेरी हो, परंतु शब्द निकलते हैं वो तेरे होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा तेरे लोगों को प्रोत्साहन मिलने पाए, तेरे लोगों को मार्गदर्शन मिलने पाए, तेरी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा, मैं आपके अधीन होता हूं, पिता परमेश्वर मैं आपके अधीन होता हूं। और प्रभु आज का ये जो संदेश है वो हमारे लिए, मेरे लिए भी और मेरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए। एक नया अभिषेक को हम सुनने के लिए और बोलने के लिए आपसे मांगते हैं मेरे पिता। एक नया अभिषेक दो, बोलने के लिए भी और सुनने के लिए भी, ताकि हम तैयार हो जाएं। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो नीचे लिखा है आप बदल जाओगे, जीवन पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को यहां लिखा है, जिस प्रकार मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचा चढ़ाया और जिन्होंने देखा उनसे वो मृत्यु से बच गए, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अवश्य है कि ऊंचा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, हमारे परिवार में, हर स्थान पर हमें प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना है। हालेलुया। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया है तो आप आशीषित होंगे,
आप जीवन में बदलाव को देखेंगे, आपके बिजनेस में बदलाव को देखेंगे, आपके कार्य में बदलाव को देखेंगे। आपके हर स्थान पर कहना चाहिए मान सम्मान, पढ़ाई, अभ्यास, नौकरी और लोगों के बीच में हर जगह पर आपको सम्मान और अच्छाइयों को देखना है। तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, वो राजाओं का राजा, वो स्वर्गदूतों की स्तुति सुनने वाला, स्वर्ग में और कोई नहीं है। वहां परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हैं, और बाकी लाखों संख्या में स्वर्गदूत हैं। और वो हमेशा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को वो स्तुति सुनाते रहते हैं स्वर्गदूत। हालेलुया। और यीशु मसीह का काम था वहां बैठकर स्तुति को सुनना, आराधना को सुनना और आराम से परमेश्वर की गोद में रहना। हालेलुया। परंतु वहां से वो इस दुनिया के लोगों को बचाने के लिए, दुनिया के लोगों को पाप और गंदगी से निकालने के लिए नीचे आया। और नीचे आने के बाद मेरे प्यारो, मान सम्मान नहीं परंतु अपमान को उसने अपने जीवन में स्वीकार किया। हालेलुया। अपमान को उसने अपने जीवन में स्वीकार किया और अपमान को जीवन में सहते 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 आखिरी वो मृत्यु में चला गया। हालेलुया। परंतु 3 दिन के बाद वो महिमा में उठा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे उठाना है तो हमें हमारे जीवन में हर एक कष्ट, हर एक समस्या, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक विरोध, हर एक निंदा सहने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। हालेलुया। मसीह सेवकाई हमेशा सम्मान की नहीं है। हालेलुया। हम सब कितने जने हैं जो दफन विधि में गए थे? हाथ ऊंचा करो। कहीं भी एक जगह नहीं बोल रहा, कौन कौन गए थे दफन विधि में? दफन विधि में हम सब गए थे। फूल किसके ऊपर चढ़ाते, कहां चढ़ाते मालूम? फूल कैसे टाकता है? हैं? मरे हुए इंसान पर। कहां चढ़ाते हैं? कब्र के ऊपर लास्ट में हम लोग फूल चढ़ाकर लौटते हैं। जब आपको फूल पहनाए जाते हैं, समझ लेना मैं मर गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको सम्मान दिया जाता है, जब आपको फूल चढ़ाए जाते हैं, तो सोच लेना ये फूल मुझे इसलिए दिए जाते हैं कि मैं इस दुनिया के लिए मर गया हूं, मैं यीशु के लिए जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार रहना अपमान सहने के लिए, तैयार रहना गाली सुनने के लिए, तैयार रहना निंदा सुनने के लिए, तब आपको सम्मान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब आपको सम्मान मिलेगा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 43 वचन। हालेलुया। कन्हैया आजे तो बांधेलो नहीं। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। गुजराती में भी वांचो कोई? जल्दी बाइबल लेने आवो छो, बाइबल काढ़ो, वचन काढ़ो। हालेलुया। निर्बलता के अंदर बोया जाता है और पराक्रम के साथ उठाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ उठाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
आदर के साथ बोया हाँ, अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। तेज के साथ उठाया जाता है। मेरे प्यारो, अनादर के लिए जीने वाले महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनादर को सहने वाले, अनादर को जीवन में पीने वाले मेरे यीशु को अनादर के साथ इस दुनिया में खर्च किया गया। हालेलुया। अपमान के साथ उसको इस दुनिया के अंदर सताया गया, पीड़ा दी गई, उसको थूका गया, उसके ऊपर कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारे गए और एक कांटा अगर आपको और मुझे लग जाता है, आज तो हम कितने जूते पहनते हैं, जूते के ऊपर अंदर मोजे पहनते हैं, बहुत सुरक्षा रखते हैं, और एक कांटा अगर छिप गया तो हमको सहन नहीं होता है। परंतु 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह को मारे गए और 39 कोड़ों के अंदर इस प्रकार के कील थे, कील। रोम राज वालों ने ऐसे कील अंदर फिट करके रखे थे। जब कोड़ा ऐसा करके मारते थे तो अंदर चुभ जाता था, फिर उसको वो सिपाही खींच लेते थे, पूरा मांस निकल जाता था। किसके ऊपर से? बोलो जोर से, किसके ऊपर से? यीशु मसीह के ऊपर से। परंतु 39 कोड़े सहने के बाद यीशु ने कहा, पिता ये तो नहीं समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता ये तो नहीं समझते हैं, इनको बदला मत देना, उनको माफ कर देना। हालेलुया, हालेलुया। जो अनादर के साथ बोया जाता है, महिमा के साथ उठाया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु को ऊंचा करो आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। अपमान सहे, अपमान को सहते जाओ। मैंने एक अपमान आपको गिना है, परंतु हमारे साथ कई लोगों ने कई बार अपमान किया गया, कई बार अपमान किया गया, कई बार मंडली में से, कई बार घरों में से निकाल दिए गए। परंतु कोई बात नहीं, उनके घर वापस जाके प्रार्थना किया। हालेलुया। और प्रभु ने आज उनको आशीष दिया। हालेलुया। मेरे यीशु को अपमान के साथ इस दुनिया ने सताया, परंतु तीसरे दिन वो महिमामय जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरे दिन महिमामय जी उठा और शिष्य को दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया, और चेलों ने बोला, यीशु जी उठा है, हमने देखा है। मरियम ने बोला, प्रभु यीशु में जी उठा, मुझे मिला है। परंतु थोमा ने कहा, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, यीशु मसीह जी उठा, हो ही नहीं सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता है। बाइबल में लिखा है, अगली बार यीशु मसीह थोमा को मिले और थोमा को बोला, मैं वही हूं जो आज से 3 दिन पहले मारा गया था। हालेलुया। उसने बोला, मैं विश्वास नहीं करता, तू दिखा तेरा हाथ। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने, देख ये मेरा हाथ। बाकी लोगों के लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, जब मैं महिमा में उठूंगा प्रभु, मेरे पूरे शरीर बदन को सही कर देना, और मेरे पीठ को पूरा छिल डाला, पूरा लहूलुहान हो गया तो उसको पूरा क्लियर करके महिमा में कर देना, परंतु छेद रखना, क्योंकि मुझे मालूम है कि थोमा विश्वास करने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये दोनों निशानी थोमा के लिए रखना, बाकी और किसी के लिए नहीं, थोमा के लिए रखना। और थोमा को यीशु मसीह ने बताया कि देख ये कीले ठोकेंगे, पैरों में झुक कर देख ये कीले ठोकेंगे। तब थोमा ने कहा, हाँ हे प्रभु, हे यीशु, वास्तविक है तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे भारत देश में कौन आया? थोमा आया। हम भी वैसे ही हैं, जब तक चमत्कार नहीं देखते तब विश्वास नहीं करते हैं, नमस्कार नहीं करते। जब तक चमत्कार नहीं देखते तब तक हम भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए थोमा ही आया हमारे देश में, ताकि प्रभु अपने चमत्कार को हम पर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये समय है हम प्रभु की महिमा के लिए बढ़ते रहें और प्रभु के काम को करते रहें, यीशु मसीह को ऊंचे उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है
लूका 19 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिसको भी मिलता है पहली आयत पढ़े। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। बस बस बस, बहुत है। हालेलुया। वो यरीहो में होकर जा रहा था। कौन? बोलो 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 बोलो, कौन? यीशु मसीह जा रहा था। उसको यरीहो में कोई काम नहीं था, वो यरीहो से होकर जा रहा था। मैं दो बातें आज आप लोगों से कहा कि अपना स्थान को ग्रहण करूंगा और ज्यादा समय तो जहां तक हो सके नहीं लूंगा। यीशु मसीह को ऊंचा करना, यीशु मसीह को देखना और यीशु मसीह से बात करना। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को ऊंचा करोगे, यीशु मसीह को देखोगे, तो आपका जीवन, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका हर कार्य बदल जाएगा। स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। स्वार्थ के लिए यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पीछे चला था, आखिरकार उसका नुकसान हो गया। स्वार्थ के लिए प्रभु की सेवा करने से प्रतिफल नहीं मिलता है। मान सम्मान के लिए सेवा करने से प्रतिफल नहीं मिलता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करके, प्रभु मेरे अंदर की सारी महिमा मैं तुझे देने के लिए मेरे जीवन को तेरे सामने लाता हूं। यीशु को ऊंचा करके अगर आप बढ़ोगे तो आप बदल जाओगे। हालेलुया। आप ऊंचे किए जाओगे। जो अनादर के साथ बोया जाता है उसी को महिमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अनादर के लिए तैयार रहें। यरीहो में होकर के प्रभु यीशु मसीह जा रहा था। उसका और वहां यरीहो में रुकने वाला था, यरीहो में कन्वेंशन करने वाला था, यरीहो में मीटिंग करने वाला था, ऐसा नहीं लिखा है। परंतु यहां ऐसा लिखा है, नीचे लिखा है कि यरीहो में एक व्यक्ति था जो अपने आप में बहुत ही लुटेरा था, बहुत ही खराब कंडीशन का जीवन उसका था, और उसकी जो लूटफाट की जो धंधा था उसको अंदर चुभ रहा था, उसको परेशान कर रहा था कि तू जो कर रहा है तेरे लिए सही नहीं है। अगर तू सही रास्ते को अपनाना चाहता है तो आज यहां एक नदी जा रही है, उस नदी के अंदर तू नहा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की नदी जा रही है, उस नदी के अंदर तू नहा सकता है, और तू अगर इस नदी के अंदर नहा लेगा तो तेरे सारे मेल आज धुल जाने वाले हैं। हालेलुया। उसके अंदर छिप रहा था। और वो व्यक्ति, दूसरा वचन पढ़ो बेटा भाई। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हालेलुया। जक्कई नामक एक व्यक्ति था और वो लिखा है बीमार था। कैसे लिखा है आपके बाइबल? जिसके पास बाइबल हो फटाफट बोलना। वो बीमार था, वो गरीब था, वो भिखारी जैसा था नहीं, वो सम्मानित व्यक्ति था। ऐसा लिखा है वो जक्कई नामक मनुष्य था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। उसको कोई गरज ही नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं थी कि चर्च में जाए, प्रार्थना करवाए या कुछ ना कुछ करे। उसको कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे भी बड़ा भी प्रतिष्ठित भी था और धनी भी था। परंतु उसके अंदर जो उसके कर्म थे ने, वो छिप रहे थे कि यीशु को देख ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को देख ले। और वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु देख नहीं पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहा था? पढ़ो बेटा। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता। बस बस बस, हालेलुया। क्यों नहीं देख पा रहा था? क्योंकि वह नाटा था। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था।
प्रियो, दोनों बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, दोनों में से मैं छांट कर आपको कहूंगा, अकेले मिलने से यीशु मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था। जब यीशु मसीह यरीहो में से होकर जा रहा है और जक्कई की इच्छा है कि मैं यीशु मसीह को देखूं, और जक्कई को मालूम है कि यीशु मसीह के बारे में सुना है, अगर उसको मैं देख लूंगा तो हो सकता है मेरी स्थिति बदल जाएगी, मेरे अंदर जो भरे हुए कोलसे हैं सब निकल जाएंगे, मैं क्लियरली हो जाऊंगा। परंतु देखूं कैसे, क्योंकि वो नाटा था और भीड़ उसको दबा रही थी। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये भीड़ किसको दर्शाती है? आज भी कई लोगों के दिल के अंदर है कि यीशु मसीह से मिले, यीशु मसीह से देखें, यीशु मसीह को देखें, परंतु भीड़ देखने नहीं दे रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, भीड़ में रहोगे तो यीशु मसीह को देख नहीं पाओगे, परंतु अगर यीशु मसीह को देखना है तो भीड़ में से आपको अलग निकलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, फिर मैं कहता हूं, मेरी सेवकाई से, मेरे हर काम से बढ़कर सरजू मासी थी, जो भीड़ से अलग बैठकर रोती थी और प्रभु की सेवकाई को स्थिर करती थी। हालेलुया, हालेलुया। अलग निकलकर, जब तक भीड़ से आप अलग नहीं निकलोगे, आप बढ़ोगे नहीं, आप आशीष को पाओगे नहीं, आप बदलोगे नहीं, आपको भीड़ में से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। भीड़ का काम क्या है मालूम है? रविवार ये नो आज देवालय जा पड़ी, असे काई भी हो रही चाली जहें जवाए तहें, बाकी रविवारी जांच पड़ी वायु बोहे ने सब कया खेती बनाए लेने चाल्या, अंदर गियो नहीं गियो त्या कई जरूर नहीं है। भीड़ का काम वो है। भीड़ वो होती है जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनती है और नहीं सुननी देती है। हालेलुया, हालेलुया। दान दे देना, विश्वास दे देना और संदेश सुन लेना, बाकी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, कोई नएपन की जरूरत नहीं है, कुछ मिला या ना मिला वो अनुभव करने की जरूरत नहीं है। उसको भीड़ बोलते हैं, उसको भीड़ बोलते हैं। परंतु अलग निकलकर सामर्थ्य को प्राप्त करना और यीशु मसीह को देखना, उसको जीवन का बदलाव बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भीड़ के बीच में प्रचार करने के बाद यीशु मसीह रात को अकेला पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक दिन भीड़ में प्रचार करने के बाद यीशु मसीह प्रार्थना करने पहाड़ पर चला गया और चेलों को बोला, तुम उस पार जाओ, नदी के उस पार जाना है, उधर की सेवा करना है। चेलों ने अपने जहाज को ले लिया, टूटी फूटी होड़ी घोड़ी को ले लिया और लेकर चल दिए। और आधी रात के लगभग पतरस घोड़ी में से बैठकर देख रहा है, सफेद सफेद पानी ऊपर होकर आ रहा है। पतरस ने बोलो, यू भूत। क्या बोला? क्या बोला? भूत आया, भूत आया। यीशु मसीह ने बोला, पतरस भूत नहीं है, तुझे भेजने वाला पहाड़ पर प्रार्थना करके अब आगे तू क्या करेगा उसके लिए तेरे पास आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास उड़ी थी? हाँ, उड़ी नहीं थी। वो अपनी उड़ी से चलता हुआ आ रहा था, पानी के ऊपर से वो अपनी स्वर्गीय उड़ी से चलता हुआ आ रहा था। तब पतरस ने बोला, यीशु मुझे भी इस उड़ी में चलने दो। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने बोला, यीशु मुझे भी इस उड़ी में चलने दो। यीशु मसीह ने बोला, पतरस आ जा बेटा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो 12 के साथ बैठा रहता तो पानी पर नहीं चल पाता, परंतु वो हुड़ी में से अलग निकल गया और बोला, यीशु मैं चलना चाहता हूं। वचन में लिखा है, पतरस ने पानी पर
चलना सीखा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। भीड़ से अलग निकलने का जमाना आ गया है। जो न है तामा बाइबल सेवका को तभी वदार जान जे है, नहीं अलग निकलो और नया प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले से करते आ रहे वो नहीं, अब नया करो, कुछ नया प्राप्त करो, नया तरीका अपनाओ, नई रीति से प्रभु से मुलाकात करो और प्रभु से बात करो और यीशु को देखो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को देखने की आहत रखो, जीवन के अंदर लालसा रखो, तमन्ना रखो यीशु को देखने की। हालेलुया, हालेलुया। उसी को वापस पढ़ो बेटा। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। हालेलुया, परंतु बस 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 प्रियो, वो धनी था, वो सरदार था, उसको कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी तमन्ना थी यीशु को देखना है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु में बच्चों, मैं आप सबसे एक नम्र सेवक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं, पैसा, नौकरी, परिवार, पद, हमारी कुर्सी कोई भी हमारे लिए काम की नहीं है। यीशु को देखने की लालसा रखोगे तो आप महिमावंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और भीड़ के साथ चलोगे तो यीशु आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज आप में से हर एक से कहना है, इस भीड़ में से निकलकर मैं भीड़ का अगुआ बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ को एक संदेश देने वाला बनूंगा। मैं भीड़ में दब कर चलने वाला नहीं, परंतु भीड़ से अलग निकलकर मैं कुछ प्राप्त करके इस भीड़ को मैं उस परमेश्वर की सामर्थ को दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भीड़ में से निकलकर देखो, ऊंचा करो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना जो थी, 15 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना, जल्दी जल्दी कर ली प्रार्थना। विचार तो हमारा खेत में है, विचार तो बेहड़ी करने हैं, अने अपना विचार तो अपनी नौकरी पर है और जल्दी जल्दी 2 मिनट की 5 मिनट की प्रार्थना कर ली। नहीं, आंसू की प्रार्थना करो, नींद को भगाओ। हालेलुया, हालेलुया। नींद को, रात की 2 बजती है, कंप्लीट मेरी नींद खुल जाती है। मेरी लाइफ हो गई, 2 बज गई, मेरी नींद खुल जाएगी। मैं कितना भी थका हुआ होऊंगा, 2 बजेगी, मुझे घड़ी देखना नहीं पड़ेगा, मोबाइल देखना नहीं पड़ेगा, 2 बजेगी, मेरी नींद खुल जाएगी। हालेलुया। और मैं आप सबसे ज्यादा खेतों में काम करने वाला आदमी हूं। मेरे पास खेती भी इतनी है, मेरे पास जानवर भी इतने हैं, मेरे पास सब है, परंतु 2 बजे के बाद मेरी नींद खुल जाती है। मैं 2 बजे के बाद मेरे पिता से बात करता हूं हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे जंगल में रहूं, चाहे खेत में रहूं, चाहे घर में रहूं, चाहे कहां भी सोया हुआ हूं, 2 बजे मैं प्रभु से कहूंगा, प्रभु तू मुझसे बात कर। उस समय ना बच्चा रोता है, ना भैंस चिल्लाती है, ना कोई और बुलाता है, केवल मैं और मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भीड़ से निकलकर अलग हो जाओ, और अलग होकर अब इसका मतलब ये नहीं है आप कलीसिया से अलग हो जाओ, परंतु भीड़ के कामों से जक्कई अलग अपने जीवन को करके दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। नाटा होना एक फायदा भी, जक्कई का नाटा होना फायदा भी उसके लिए था। अगर वो नाटा नहीं होता तो क्या यीशु मसीह को देखता? नहीं देखता। वो इतना कोशिश करता ही नहीं और भीड़ के अंदर धक्का मुक्की खाते हुए चलता रहता, परंतु वो नाटा था, इसलिए उसको नाटे का कारण फायदे का रहा और वो जाकर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह को उसने देख लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हमने सुना है, हमने गाया है, हमने आराधना किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने प्रभु भोज लिया है,
हमने अनुभव अन्य भाषा का अनुभव किया है, परंतु यहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है। हमें आज प्रभु से यह प्रार्थना करना है, प्रभु मैं एक पगला और आगे आकर आज की स्थिति में तू कैसा है, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना में, मेरे दर्शन में, मेरे अंदर के विवेक सोच में प्रभु यीशु तू मुझे दिखाई देना चाहिए, मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। प्रियो, जक्कई ने, अब ज्यादा प्रकाशन मैं इसके ऊपर नहीं देने जा रहा हूं, जक्कई ने अपनी तमन्ना के द्वारा यीशु को देखा। हालेलुया। वो धनी था, वो सरदार था, उसको कोई जरूरत नहीं थी, परंतु उसके अंदर के पाप उसको बोल रहे थे तो यीशु से मिल ले। हालेलुया। अंतिम दिनों में प्रियो, हमारे यीशु मसीह से मिलिए और यीशु मसीह को ऊंचा करिए। हालेलुया। तो आप महिमावान हो जाओगे। हालेलुया। देखें उसका यूहन्ना 3 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। वापिस जक्कई के पास ही आना पड़ेगा, परंतु एक वचन को पढ़ लो, 15। थैंक यू। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह को देखेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। जो कोई यीशु को ऊंचा करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। ताकि जो कोई उसको देखे वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। जक्कई के अंदर अनंत जीवन नहीं था, जक्कई के अंदर पैसा था, सरदार था, वो सम्मानित व्यक्ति था, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए कहां चढ़ गया? गुल्लर के पेड़ पे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहिए साफ सुथरा अच्छा व्यक्ति हूं, और आप यहां से मीटिंग छूटो और मैं जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ के ऐसे दब जाऊं तो आप क्या बोलोगे? प्रेम भाई मैं दुष्ट आत्मा जो रहेगी होड़ो लगे है, पागल हो गया ये तो पागल है। अरे सरदार है, धनी है, वो तो सम्मानित बड़ा था, बोल सकता था भाई मैं जमादार आदमी हूं, हटो हटो हटो, मेरे को यीशु को मिलना है, हटो तुम हटो। तो नहीं हट जाते क्या लोग? हट जाते थे, क्योंकि उसका पावर था। तो वो चुंगी लेने रोड पर खड़ा है, आईटीओ आदमी था, वो अगर बोलता तो सब साइड दे देते, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति पैसों वाला है, साइड। परंतु उसने कोई परवाह नहीं किया। हालेलुया। लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे पागल कहेंगे, क्या कहेंगे, मेरा मान इज्जत खत्म हो जाए, एक भी बात उसने सोचे बिना सीधा, कितनी उम्र का होगा क्या मालूम, वो बुजुर्ग ही होगा कि कैसा होगा मालूम नहीं है, क्योंकि उसका पद तो बड़ा था, वो चढ़ गया गुल्लर के पेड़ के ऊपर और दुबक के बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को भूल गया, अपने पद को भूल गया, अपनी धन को भूल गया, अपने सम्मान को भूल गया। एक ही विचार है, और वो क्या है? यीशु को देखना है। बोलो यीशु मसीह की। यीशु को देखना है। वो दुबक के बैठा है कि यीशु यहां से निकलेगा, इसी मार्ग से निकलेगा, और इसी मार्ग से निकलते ही मैं इसको देख लूंगा। हालेलुया। परंतु उसको देखने से पहले आपको मालूम है यीशु ने देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने देख लिया। आप जब यीशु को देखने की तमन्ना करते हैं, आप यीशु को देखने की प्रार्थना करते हैं, आप यीशु को देखने का उपवास करते हैं, लोगों को दिखाने वाला नहीं, आप यीशु को देखने का गीत गाते हैं, आप यीशु को देखने का बाइबल पढ़ते हैं, आप यीशु को देखने के लिए चर्च जाते हैं, आप यीशु को देखने के लिए दान देते हैं, आप यीशु को देखने के लिए दशवांश देते हैं, आप यीशु के लिए करते हैं, यीशु आपको देख लेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहले वचन में क्या लिखा है? यरीहो में होकर क्या कर रहा था? जा रहा। रुक रहा था? नहीं, वो जा रहा था। हालेलुया। परंतु नीचे क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बोला, बेटा मेरा प्लान कैंसल हो गया है। जक्कई, मेरा प्लान क्या हुआ है? कैंसल हो गया है। पढ़ो 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 पढ़ो, आप बोलो। प्रेम भाई રાજસ્થાન થી લઈને આવ્યો છે, અને રાજસ્થાન થી કે છે બાકી
नीचे उतर, कौन सी आयत में है? नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर में, 5वीं आयत पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। रास्ते से होकर जा रहा था, यरीहो में कोई काम नहीं था, यीशु मसीह को रुकना नहीं था क्योंकि आगे काम था, परंतु आगे का काम कैंसिल करके यीशु मसीह ने बोला, जब कहीं दुबक्के मत उतर, बैठा रहे और झाड़ियों में मत छिप, नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दिखेगा ही नहीं, परंतु मैं विश्वास करता हूं आज यीशु मसीह आपके साथ आपके घर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई यीशु को देखने के लिए ताक रहा था, परंतु दिखा ही नहीं, परंतु यीशु उसके घर आ गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप और मैं मेरे जीवन में ऐसी तमन्ना रखिए, यीशु मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मैंने आज तक सुना है, परंतु आज से मेरी ये प्रार्थना होगी कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, एक बार एक प्रभु के दास ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे आप दिखाई दो। वचन में लिखा है, प्रभु के दास को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देकर कहा, मैं वो यीशु हूं। हालेलुया। और उसने निकल कर बोला, मैं भगत सिंह ने बोला, मैं यीशु मसीह को देखा है। उसके पिताजी को बाहर निकल कर बोला, मैंने आज यीशु मसीह को देखा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, खड़े रहने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, कोई बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। जक्कई के पास कोई समय नहीं था, एक ही तमन्ना, एक ही भावना, एक ही विचार, मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया, मुझे यीशु को देखना है। मैं कैसे भी करके मैं भीड़ में नहीं रहूंगा। मेरे प्यारो, भीड़ के समान नहीं रहना है। पादरी साहब बोलते हैं, हाथ ऊंचा करो, इधर देखते, इधर देखते, ये नहीं ऊंचा कोई, आई भी नहीं ऊंचा को। पास्टर साहब बोलते हैं, आइए हम सब घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करेंगे। हम उधर उधर देखते हैं और कोई नहीं कर रहा, आई भी नहीं को। हमें दूसरों को, भीड़ को नहीं देखना है, हमें खुद को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। हमें भीड़ करती वो नहीं, मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए, यीशु की सेवकाई के लिए, यीशु की महिमा के लिए, यीशु को ऊंचा करने के लिए मैं एक नया काम करूंगा। अगर आप आज से इसकी शुरुआत करोगे, मैं पवित्र आत्मा में होकर आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आपके घर में चला फिरा करेगा। हालेलुया। आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर के अंदर परेशान और व्याकुल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु आपके घर में चला फिरा करेंगे। और जहां यीशु रहता है वहां बदलाव रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां यीशु रहता है वहां बदलाव रहता है। इसलिए प्रियो, यीशु को देखने के लिए अपने आप को आज तैयार करें। जक्कई उसी रास्ते पर गया जहां यीशु निकलने वाला था। हालेलुया। एक वचन दूसरा पढ़ें, उसके बाद समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो। 4वां अध्याय, आयत में बताता हूं आपको, 1 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 6 और 7। और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हालेलुया। मेरे प्यारो, पहली बात, जक्कई की तमन्ना थी यीशु को देखना, और वो प्रतिष्ठित था, सम्मानित था, और वो धनी था,
उसके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु यीशु को देखने की उसकी तमन्ना थी। वो नाटा था और भीड़ के अंदर दब चुका था। वो भीड़ के अंदर एक यीशु को देख नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने जीवन में निर्णय किया, मुझे कोई भी कीमत चुकाना पड़े मैं चुकाऊंगा, परंतु यीशु को देखूंगा। और वो अपमान को सहते हुए, लोगों के सामने मुझे लोग क्या बोलेंगे, उस सारी बातों को भूलते हुए पेड़ पर चढ़ गया जिस मार्ग से यीशु जाने वाला था, और यीशु को देखा और यीशु उसको देखकर अपने घर गया। हालेलुया। यीशु को देखने की तमन्ना अगर आप और मेरे जीवन में है तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके साथ होगा, आपके घर होगा। हालेलुया। और दूसरी बात जो है वो है यीशु से बात करना। हालेलुया। प्रभु यीशु से बात करना। मेरे प्यारों, इस सामरी बाई के बारे में आप सब जानते हैं और मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण इसमें से नहीं करना चाहता हूं, परंतु मैं थोड़ी बातों में आपसे कहना चाहता हूं। ये परेशान दीदी थी, परेशान बहन थी, उसके जीवन में शांति नहीं थी। कोई भी बहन ऐसी नहीं होती है जो कि आज उस घर और कल उस घर और फिर उस घर और फिर उस घर। उसकी जिंदगी के अंदर भी एक जन्म है और एक इज्जत है, परंतु वो अशांत से भरी हुई बेटी थी और उसको जिस भी घर गई उसको शांति नहीं मिली थी और हमेशा वो परेशान थी, परेशान थी, परेशान थी। और उसके ऊपर अशांति की ईंटें चढ़ती जा रही थी। एक ईंट चढ़ी, दूसरी ईंट चढ़ी, पांचवी ईंट चढ़ी, चौथी ईंट चढ़ी, तीसरी चढ़ी, चौथी चढ़ी, पांचवी चढ़ी, उसके ऊपर अपमान की ईंटें चढ़ती जा रही थी और वो उस ईंटों के नीचे दब रही थी, अपने आप को व्याकुल समझ रही थी। लिखा नहीं है, परंतु मैं मेरे सोच से बोलता हूं, हो सकता उसके दिमाग में होगा मैं कुएं में जाकर आत्महत्या कर दूं, क्योंकि मुझे जीना नहीं है। मैं जिस पति के पास जाती हूं वो मेरा अपमान करता है, मैं जिस पति के पास जाती हूं वो मेरा अपमान करता है, जिसके घर जाता हूं वो जाती हूं वो मेरा अपमान करते हैं, मुझे अब जीना नहीं है। वो सामरिया से अलग निकलकर उस कुएं पर गई जहां जीवन देने वाला यीशु खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, अशांति के वातावरण में, परेशानी के वातावरण में, दुख के वातावरण में कई बार हम बैठ बैठ कर रोते रहते हैं। हम सोचते हैं कोई मेरी मदद करेगा, कोई मुझे देखने आएगा, कोई मेरे को सलाह देने आएगा, कोई मुझे उठाने आएगा, कोई नहीं आता है। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जो अकेले में मिलकर आपके जीवन की सारी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके भविष्य को बदल देगा, आपकी हर स्थिति को बदल देगा, क्योंकि यहां लिखा है वो लड़की, वो भाई जैसे आई वैसे प्रभु यीशु से वार्तालाप करने लगी। हालेलुया। यीशु ने बोला, बेटा मुझे पानी पिला दो, कोई नहीं है, चले गए हैं रोटी लेने के लिए, मैं अकेला हूं, थका हुआ बैठा हूं, मुझे पानी पिला दे। उसने अपने दिल का सारा दर्द बताया। उसका पहला दर्द क्या था मालूम है? उसने बोला, मैं एक नीच जाति की हूं। आज इस दुनिया में ये बातें बहुत तेज गति से चल रही है, ऊंच नीच वाली। उसने बोला, मैं नीची जाति की हूं, तू एक बड़ा व्यक्ति दिख रहा है, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, मुझे पत्थर मार के लोग मार डालेंगे, क्योंकि तुझे तो मालूम नहीं है मैं सामरी हूं, परंतु लोग जानते हैं सब ये सामरी है, और सामरी ने तूने एक बड़ी जाति के व्यक्ति को कैसे पानी पिला दिया, मुझे मार डालेंगे। इस प्रकार अपने दर्द को, मैं ये बात इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने दिल के अंदर जो दर्द थे, उसने वो दर्द बताते बताते अपने जीवन की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को बताना शुरू कर दिया। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उसको जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटा सब पूरा हुआ, सब पूरा हुआ। एक बात है, आज तू तेरा वो पुराना घड़ा भूल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू आज वो तेरा पुराना घड़ा भूल जाएगी, मैं तुझे बदलने आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करोगे तभी बदल पाओगे। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे
तो बदलाव किनारे पर है परंतु हमारे अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। और बातचीत जो है वो प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से मिलना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, हमें बातचीत करना है। सामरी ने प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप किया, अपने सारे दर्द को वो भूल चुकी थी, अपने जीवन में सारी कठिनाई परेशानी को वो भूल चुकी थी। ये कौन है ऐसा व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है? वो उसको सोचते हुए उससे बात कर रही थी और बात करते 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 सारे वार्तालाप सुनते सुनते इसके जीवन में बदलाव आ गया। 42 वचन को पढ़ लो, 42। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वार्तालाप करने से आपका विश्वास बढ़ेगा, आपको परमेश्वर की महिमाएं दिखाएगी, परमेश्वर के काम दिखाई देंगे और आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। देखने की तमन्ना रखोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा। और अपने घुटने टेक कर आंसू बहाकर, अगर त्याग के साथ, शुक्रवार का ही उपवास नहीं, कोई दिन विशेष का उपवास नहीं, परंतु उपवासों के ऊपर उपवास और प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, अगर आपने तमन्ना से शुरू कर दी, मैं यीशु को देखना चाहता हूं, तो यीशु मसीह आपके गांव, आपका घराना, आपका मोहल्ला, आपका विस्तार बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामरी के वार्तालाप से, सामरी की बातचीत से, मेरे प्यारों, अपनी सारी बातें खोल के सामरी ने और यीशु मसीह को बताया। यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपनी महिमा का पानी डालता गया और महिमा का पानी डालते उसको पूरी को धो दिया, वो साफ सुथरी हो गई। उसके बाद दौड़ती हुई सामरिया में गई और सामरिया में जाकर सारे लोगों को कहा, वो मसीहा जिसकी बाट तुम जो रहे हो, वो उद्धारक जिसकी बाट तुम जो रहे हो, कुएं पर बैठा है, चलो मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। और सामरिया का उद्धार हो गया और सामरिया की पूरी मंडली को साथ लेकर बोला, यीशु तेरे कहने से नहीं परंतु तेरी बातों से हमने सुन लिया कि तू ही वास्तविक सामरी को बदलने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, बदल देगा और आप परमेश्वर की महिमा कर पाओगे और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, आप परमेश्वर की महिमा करोगे। इसलिए मेरे प्यारों, पहली बात, यीशु को सुनना बहुत हो गया, चर्च जाना बहुत हो गया, भीड़ में रहना बहुत हो गया, भीड़ के साथ चलना बहुत हो गया, भीड़ के साथ साथ वाला कवर देना बहुत हो गया। अब भीड़ में से निकलकर मैं कुछ नया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं नया करूंगा। जक्कई भीड़ में से निकलकर ऊंचे चढ़ गया, यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह की महिमा को देखा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस जक्कई को अपनी महिमा को दिया और यरीहो से होकर जा रहा था, परंतु वो यरीहो से होकर नहीं गया और एक दिन जक्कई के घर में रुक गया। हालेलुया। और यहाँ वो सामरिया में जाने वाला नहीं था, वो वहां से होकर निकल रहा था, परंतु बातचीत करने वाली स्त्री ने, वचन में लिखा है, यीशु मसीह को रोक दिया। हालेलुया, 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 रोक दिया। इसी के अंदर अगर आपको मिलता है तो कोई पढ़ लो, 2 दिन के लिए यीशु वहां रुक गया। हालेलुया, 2 दिन के लिए यीशु वहां रुक गया, ऐसा लिखा है। एक वचन में लिखा है वो 2 दिन वहां रुक कर फिर गए। उन्होंने बोला कि यीशु हमारे यहां आप रहो। 43 ओके। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया। हालेलुया, वो 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया। हालेलुया। वो सामरिया में रुकने वाला नहीं था, सामरिया में उसको कोई काम नहीं था, परंतु चेले खाना लेने गए थे
और उस वो कुएं पर थका हुआ जाकर जरा विश्राम कर रहा था, परंतु उस वार्तालाप करने वाली लड़की ने बोला, यीशु मसीह 2 दिन हमारे गांव में रुक जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सामरिया को बदल दिया। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने और भी वचन सुनाया, ऐसा लिखा है। और भी ठहर कर उसने वहां और भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन 2 बातों को आपके जीवन में आप रखिए और लेकर जाइए। प्रभु आपको आशीष देगा और आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने पाओगे। हालेलुया। भीड़ में से निकलकर हमें अलग होना है। हालेलुया। मान सम्मान को नहीं देखना है, अपने जीवन को ये नहीं सोचना है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, अगर मैं घुटने पर बैठूंगा सब देखेंगे मुझे क्या कहेंगे। दूसरे हाथ ऊंचा नहीं कर रहे, अगर मैं अकेला हाथ ऊंचा करूंगा मुझे लोग क्या कहेंगे। दूसरे दान देने नहीं जा रहे, मैं अकेला जाऊंगा लोग मुझे घमंडी कहेंगे। नहीं, भीड़ में से निकलकर एक नया काम की शुरुआत करो। हालेलुया। पुराने मसीह रहने का जमाना नहीं है। अब 50 साल 40 साल वाले विश्वासी रहने की समय नहीं है, अब नया होने की जरूरत है। हालेलुया। जब कई भीड़ में से निकलकर यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने बोला, मैं आज तेरे घर रहूंगा। सामरी स्त्री पापी सामरिया देश में से निकलकर यीशु मसीह से वार्तालाप करने आई। वो यीशु मसीह के सामने अपने आप को खाली कर दिया और अपने आप को सारी बातें भूलकर यीशु से बात करने लगी। वचन में लिखा है, सामरी को ही नहीं सामरिया को यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया। आपके और आपके परिवार को यीशु मसीह बदल देगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ इस संदेश को ये समाप्त करता हूं। आइए हम सब खड़े होकर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रीदाबा रीदालाबा खाराबा शंबलरबा रिखाबा दियारालाबा। आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु, तेरे सेवक के मुंह से तूने मुझे बात किया है। हालेलुया। मैं भीड़ में से निकलूंगी, मैं भीड़ में से निकलूंगा, मैं पुराने स्वभाव को बदलूंगा, मैं नए स्वभाव को मेरे जीवन में अपनाऊंगा। मैं एक नया व्यक्ति होना चाहता हूं प्रभु। ओ, मैं मेरे गांव को बदलना चाहता हूं, तू मुझे तैयार कर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा तेरी मैं। अन्य वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों हो सब मुसीबतों से, आग की पुतल जैसे संभाला मुझे। प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं। मेरे पीछे बोलिए, मैं भीड़ में से अलग निकलकर प्रभु तेरे लिए जक्काई के समान, सामरी के समान एक नया काम करना चाहता, बड़ा काम करना चाहता। प्रभु तू मुझे मदद कर। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर पिता, तेरे सामर्थ्य नाम में हम सब तेरे कदमों के नीचे झुक जाते हैं। प्रभु, तू जब यरीहो से निकल रहा था, खुदावंद तुझे यरीहो में रुकना नहीं था, परंतु जक्काई ने तुझे रोक लिया। हमारी प्रार्थना है मेरे पिता, ये तेरे बच्चे हैं, हम सब तेरे बच्चे हैं। यीशु मसीह के नाम से
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे घरों में एक नई शुरुआत आप करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में, हमारे बिजनेस में, हमारे हर स्थान में एक नए कार्य को शुरू कीजिए, ताकि प्रभु इस जमाने के अनुसार हम एक नए तरीके से आपके सुसमाचार को, आपके कार्य को, आपकी सामर्थ को इस दुनिया को दे सके। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया को आशीष दे, कलीसिया के दासों को आशीष दे, कमेटी को आशीष दे, हर विश्वासी को आशीष दे। धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आज वचन दिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए। પ્રભુના દાસનો પુષ્કળ આભાર માનીએ। ટાઈમ ઘણો થઈ ગયો છે, પણ આપણે જલ્દીથી સમાપ્ત કરીશું। આ સમયે કોઈ રગાડશો એક ગીત કોઈ પ્રભુ બેટ લઈશું આ સમયે। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बोल हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अभी जरिए काम प्रेज ताड़ियों पढ़िए। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। आसमां से ऊंचा। तालियों पढ़िए, जेब में ऑफरिंग न कियो, दान न कियो, तालियों पढ़िए तो प्रभु ने महिमा करी है। तेरी आशीष हम पर और तेरा ज्ञान हो, तेरी आशीष हम पर और तेरा ज्ञान हो। जीवन की मेरे सबको दिल में तेरा नाम हो। जीवन की मेरे सबको दिल में तेरा नाम हो। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। आसमां से ऊंचा। आए तेरी दर पर सब खाली न जाए कभी,
आए हैं दर पर हम सब तेरे, खाली न जाएंगे कभी। मुक्ति भक्ति शक्ति तुझसे पाएंगे मसीह। मुक्ति मुक्ति शक्ति जो भी तुझसे पाएंगे मसीह। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। आसमां से ऊंचा। बोल हालेलुया। સારું આપણે જલ્દી સમાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ પણ થોડો ટાઈમ જાય છે આ કોણ લાવ્યું છે આ નંબર સારું આ પોકેટ પર લખવામાં જ આવ્યો છે વાંચી દઉં છું તમે લાવ્યા વિઠ્ઠલદાસ કોમ્પ્લેક્સ સનગઢમાં સુમિત્રાબેન કંસારા આજથી ટેલરની દુકાનની નવી શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે માટે દુકાનને પ્રભુના હાથમાં સમર્પિત કરવા અને પ્રભુનો આભાર માનતા પ્રાર્થના વિનંતી આવી છે એ નિમિત્તે અહીંયા આ મીઠાઈ લાવવામાં આવ્યા છે તો આપણે જલ્દીથી આ સમય સમાપ્ત કરીશું આપણી બધી બાકી પ્રાર્થનાઓ છે એમના માટે અને આખરી પ્રાર્થના આપણે કરીશું ને હું વિનંતી કરીશ આપણે આવેલ પ્રભુના દાસનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીએ આ મીઠાઈ માટે પ્રાર્થના કરશો સન્ડે સ્કૂલ બાળકો જેટલા નાના છે પોતપોતાના સ્થાન પર તમે ઊભા રહી જશો હવે પ્રભુ ભેટ દસમાસ ને આ મીઠાઈ માટે પણ પ્રાર્થના કરીશું પ્રેમભાઈ અગળાવશો ટેલરની દુકાન બેન ચાલુ કરવા દઈ રહી છે એના માટે મીઠાઈ છે એ લાવ્યા છે બાળકો માટે હા ટેલરની દુકાન બેન ઊભા થઈ જશો આ બાજુ બસ આ બાજુ અહીંયા આગળ આવી જાવ કપડા જોડાવાની જરૂરત પડે તો બધા બેનની પાસે સગાવાલાને બી કહેજો આપણી દુકાન છે પ્રભુ એમને આશીષ હાલેલુયા થેન્ક યુ જીસસ ગ્લોરી ટુ ગોડ ઇન ધ નેમ ઓફ जीसस दया के धनी जीवित परमेश्वर पिता हालेलुया आप हमारे जीवित और मेहरबान हैं और हमें बढ़ाने वाले हैं प्रभु घटाने वाले नहीं आपने कहा मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं तुम्हें ऊंचे करूंगा नीचे नहीं मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम सालों से देखते आ रहे हैं आपने हमारी कलीसियाओं को विश्वासियों को बहुत ऊंचा किया है प्रभु आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं हमारी बहन और आपकी बेटी के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं जो एक नया बिजनेस शुरू करने जा रही है प्रभु यीशु के नाम से उस स्थान को आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं दुकान के नाम से जब वो गेट खोलती है प्रभु उसमें आपका प्रवेश होने पाए आपकी उपस्थिति होने पाए ग्राहक से बातचीत करने में आपका अनुग्रह मिलने पाए और धंधा करने में और सिलाई करने में आपका अनुग्रह मिलने पाए उस मसीह के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए उसका बिजनेस बढ़े और प्रभु कई ऊंचाइयों तक उनको पहुंचाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पूरे परिवार को अभिषेक आशीष आपके होने देना प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु मिठाई को भी हम आपके हाथ में सौंपते बहन बड़ी खुशी से लाई है इस पर आपका अनुग्रह हो आशीष हो खाने वाले हरेक इनके लिए प्रार्थना और प्रभु आशीष शब्द उच्चारण करने वाले बने ऐसा होने देना संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना है भविष्य की कलीसिया भविष्य के सेवक
भविष्य की सेविकाएं इस संडे स्कूल के द्वारा खड़ी होने पाए और आपकी महिमा करने पाए। जो संडे स्कूल सिखाते हैं उनके ऊपर भी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष होने पाए। और प्रभु जो भेंट और दशमांश यहाँ आपको चढ़ाए गए हैं, प्रभु यीशु हम आपकी ओर बढ़ाते हैं। हालेलुया। देने वाले हर एक हाथ को 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बरकत देना। 5 रोटी और 2 मछली को 5000 को खिलाकर 12 टोकरी बचाकर अपने चेलों को दिखाने वाले यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उनका धंधा, रोजगार, खेतीबाड़ी, भैंस बकरे हर एक आशीषित होने पाए। और प्रभु ये कलीसिया आर्थिक रीति से उन्नति करके कई लोगों को मदद करने वाली कलीसिया बन जाए। ऐसी प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आशीष करो। हमारी सारी दुआएं सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो हमारा बाप और सन તમારો રાજો તેમ જેમ અમારા ઋણ માફ કર્યા છે તેમ તો અમારા ઋણ માફ કર, અમને પરીક્ષામાં ન લાવ પણ બળાઈ તમારો છૂટકો કર, કેમ કે રાજ્ય પ્રભાવ પ્રેમ આમેન। देव आमेन। देव बापा ने प्रीति, प्रभु यीशु ख्रिस्त कृपा, पवित्र आत्माની સહભાગીતા તમારા મના હરેકની સાથે અને ધરતી પર જેઓ દેવની બીક રાખીને જીવન જીવે છે તેઓ દરેકની સાથે પ્રભુ યેશુ મસીહના વાદળમાં આવતા સુધી થતી રહેજો। આમેન આમેન આમેન।